Okay, hello and welcome everybody today to the Technical channel. So today we have Prabhat Kumar Roy with us, and he's from the CPS IIT Mumbai. We ask him a few questions that we get most of the time on our website, and we will try to assess what is his point of view and what is his opinion on the entrance examination preparation, the challenges faced by the Indian student and the students also. Okay. So Prabhat, so first of all, welcome to the session. And Thank you, thank you. yeah, to begin with, Prabhat, can you just let us know about your IIT journey in a short story like thing, just a short presentation. Yeah, sure. So basically, when I was in my 10th standard, I was preparing for my boards examination. But that time Corona came and everything just shut down, and our boards were also cancelled. So I got something around 96% on my boards, and after that I thought what to do next. And there were few options, just like doing NEET engineering or taking commerce Yeah. or arts also, but I chose PCM and decided to prepare for engineering. Okay. So in class 11th, in starting, I prepared few months, but after that, I was distracted too much. I was just playing video games, playing cricket, and was not focused at study at all. Okay. So my whole 11th got wasted. I ruined my class 11th. I only studied a few chapters of class 11th at a good level. Okay. And after that, when I came in 12th, then I decided I have to do something so that I can go to IIT. Otherwise, it won't be possible. So in class 12th, I started my serious JEE preparation. In class 12th, I fixed up my schedule. I made a routine. I studied every day for about 8 hours or something more than that also. Okay. And just regular consistency, this gave me this result. And after that, I came to IIT Bombay. Okay, so wonderful. So it's a kind of motivating story also because I think while you were telling, and yeah, for the Indian audience also, I'll try to communicate in Hindi so that this is applicable to both of our audiences. Okay. So Prabhat, sorry, Prabhat, Hmm. जैसे आपने बताया अभी कि you were preparing for the IIT और या ग्रेड 11th वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा आऊंगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितनी भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं उनके हाँ, साथ ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है तो टू बिगिन विद माय क्वेश्चन आई जस्ट नीड टू नो आपने आईआईटी एग्जामिनेशन जेई मेन दिया था ना कौन से ईयर में दिया था ये वाला आफ्टर कोरोना मैंने जेई 2023 में अपना मेंस दिया था। जेई 23 में दिया आपने हम्म। Okay, और बोर्ड में आपके कितने स्कोर आया था 95 आई थिंक यू सेड हाँ, 96 आए थे 10th बोर्ड्स में और 12th बोर्ड्स में 97। ओके तो प्रभात तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आपसे बाद में जरूर पूछना था बट सिंस यू सेड आई थिंक मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ तो क्लास 11th का ना एक बहुत ही एक ये क्वेश्चन हमेशा होता है क्या आपको ये क्लैरिटी थी ग्रेड 11th में आने के बाद जैसे आपने बताया कि यू वर कंफ्यूज बिटवीन नीट एंड जेई राइट हम्म। कि मुझे कौन सा देना है तो आपको क्लैरिटी कब मिली क्योंकि आपने पीसीएम भी तो नहीं लिया था आई थिंक 11th में पीसीएम ही था आपके पास right? हाँ, So what made you tilted towards engineering or JEE? हाँ, मतलब मैं मुझे पहले भी जब मैं क्लास 10th में पढ़ता उस टाइम मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी पढ़ा था। लेकिन उस टाइम में मेरा ये था कि इंटरेस्ट मुझे बायो में उतना आता नहीं था। उसमें काइंड ऑफ चीजें याद करनी पड़ती थी। और मेरा मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर भी आया था क्लास 10 में। बोर्ड में आई गॉट 99 आउट ऑफ 100। तो मैंने सोचा कि जेई ही करते हैं क्योंकि पहली बात तो नीट मुझे डॉक्टर बनने का भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और मैंने अपने सीनियर से भी कुछ मेरे भैया थे स्कूल के, Right. तो उनसे भी मैंने पूछा था जिन्होंने नीट किया था। उन्होंने बोला था कि कॉलेज आने के बाद भी आपको नीट का यदि आप तैयारी कर रहे हो तो कॉलेज आने के बाद भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है। So it's तो right. मुझे ऐसा था कि कॉलेज जाके मुझे एंजॉय करना है थोड़ा, मतलब कॉलेज जाके मुझे पढ़ाई नहीं करनी ज़्यादा, इसलिए Right. मैंने यही चुना। हाँ। Right. तो प्रभात इस केस में जैसा आपने बताया ग्रेड 11th के अंदर आपके पास जो आपका स्कोर था और आपने ऑलरेडी ये चीज प्लान कर ली थी
कि मुझे अभी जेई के लिए जाना है, मुझे मेडिकल के लिए नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस की अगर हम एक बात करें, फॉर एग्जांपल सिलेबस भी नहीं, मैं सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो जो बायोलॉजी है आज सच, उसमें कहीं ना कहीं चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, एंड वेयर एज मैथमेटिक्स इज अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, जहाँ पे द मोर यू प्रैक्टिस मोर विल बी एबल टू डू इट, तो आपको कुछ शायद याद करने की उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हम्म। ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना डिफरेंस है? क्या लगता है आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में डिफिकल्ट है या मेडिकल में ज्यादा डिफिकल्ट आपको जो फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था, और यदि हम फिजिक्स को यदि बाय हार्ट यदि कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो लगता मुझे नहीं लगता उसे याद करना पड़ेगा हमें ज़्यादा। मतलब मुझे पर्सनली तो याद नहीं करना पड़ा। मैंने मुझे जो टीचर पढ़ाए जिन टीचर ने पढ़ाया उन टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मुझे याद करने की उसमें कभी नीड लगी नहीं। और केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री तो याद करने का नहीं होता। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में याद करना पड़ता है। है? So, जो आप कहना चाहते हैं, if I can convey it to my NRI audience, is that whenever you are preparing for any entrance examination, it all depends on your conceptual ability and your conceptual understanding. So, as long as you have a conceptual understanding, there is no need to mug up things. Correct? हुँ, या ओके, राइट। तो ऐसा क्या हुआ प्रभात, बिकॉज ये होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए आते हैं, और हम जब उनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ग्रेड 11, मैं बताऊं, मैं बताना चाहूंगा सारी ऑडियंस को भी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स आते हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें से ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 350 टू 400 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेड 12 में आते हैं जेई प्रिपरेशन के लिए, राइट? बाकी जो 100 स्टूडेंट होते हैं वही खाली ग्रेड 11 में आते हैं। बट पॉइंट इज कि क्योंकि एनआरएस स्टूडेंट जो हैं वो एक तो हमारे इंडिया के सेटअप में नहीं है, दे आर फार मोर अवे फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम दैट वी हैव हियर इन इंडिया। उतनी एजुकेशनल या कोचिंग अवेलेबिलिटी नहीं है उन लोगों के पास जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, जो गाइडेंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उस केस में एनआरआईज के साथ क्या प्रॉब्लम क्या होती है? आई थिंक यू आर द बेस्ट वन टू टेल मी दैट। प्रॉब्लम ये होती है कि उन लोगों को ग्रेड 12th में जाके याद आता है कि अच्छा ठीक है, अब हमको जेई की प्रिपरेशन करनी है, बट तब तक उनके लिए जेई के कंपटीशन को मैच करना डिफिकल्ट हो जाता है, ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अलॉन्ग विद देयर बोर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि फॉरेन में जो भी एनआरआईज हैं, दे आर ऑलवेज एंड ऑलरेडी फोकसिंग टू मच ऑन देयर सीबीएसई प्रिपरेशन। तो वो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सिंपल अब आपसे ये है कि क्या 11th एंड 12th दोनों में प्रिपरेशन करना से आपको हेल्प होगा, या फिर 12th भी आपके लिए सफिशिएंट है, कंसिडरिंग इफ वी टॉक अबाउट एनालाइज? तो मतलब हम 12th के साथ-साथ 11th भी कर सकते हैं। आई गेस कि यदि हम प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएँ कि एकदम टाइम टेबल अच्छे से बनाएँ कि इस टाइम पे मुझे 12th पढ़ना है, इस टाइम पे 11th पढ़ना है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू यदि हम पढ़ें तो हम दोनों को कोप अप कर सकते हैं एक साथ। ये मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने एक शेड्यूल बनाया था जिसमें मैंने हर दिन के 2-3 घंटे ही निकाले थे 11th के चैप्टर्स को कवर करने के लिए। तो उन 2-3 घंटे में मेरे चैप्टर्स कवर होते गए। और एक ऐसा चीज़ होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करने का कोशिश भी करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th के, तो एक दिन 2-3 घंटे से वो 1 हफ्ते करते गए, उससे ज़्यादा उनका दिखता नहीं कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो उस चक्कर में वो उन्हें छोड़ देते हैं 11th को, सोचते हैं कि मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको यही चीज़ कंसिस्टेंटली रेगुलरली करते जाना है। तो यदि आप रोज़ करोगे तो आपका धीरे-धीरे आपको दिखेगा कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया, तो धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, तो आप दोनों के साथ में कवर कर सकते हो। करेक्ट। तो ये बात तो आपने बताई कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट 12th में है, तो 12th में उसको 11th एंड 12th के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एक 11th क्लास में जब एक स्टूडेंट आता है, और अगर वो अपनी, क्योंकि यहाँ पे ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी जेई एस्पिरेंट को समझने के लिए, कि फर्स्ट जो आपने बताया इट्स कंसिस्टेंसी। पहला बात तो कंसिस्टेंसी हुआ। सेकंड बात ये हुआ कि आप अपने जो टाइम आपके पास अवेलेबल है उसका आप बेस्ट यूज कैसे करते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप अपना 11th ग्रेड में यूज करेंगे पढ़ाई ना करके जेई की फॉर एग्जांपल, उतना ही प्रेशर आपके पास थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑलरेडी रहे, राइट? तो मे बी आपके लिए शायद इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के मे बी 199 ऑफ 100 या 100 ऑफ 100 शायद मे बी नहीं आते, राइट? तो कहीं ना कहीं वो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर के भी
ऑलरेडी टेंस होते हैं, दे हैव टू परफॉर्म बेटर। और अब तो एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी मिनिमम कट ऑफ जो बोर्ड का हो गया है वो भी इन एक्शन है, राइट? तो उन्हें मिनिमम मार्क्स वो तो स्कोर करनी ही करनी। सो द क्वेश्चन हियर इज कि 11th में अगर हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर ऑलरेडी सॉरी 12th में ऑलरेडी क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपके पास दो चैलेंजेस हैं। फर्स्ट चैलेंज इज टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, and second is to perform better in the JEE main examination। और JEE main के बाद you have to do JEE advanced also। यहाँ पर एक बात है जो मैं मेरी बाद में NRIs को बताना चाहूंगा for their NRI quota, we can come back to that later। so यहाँ पे हम challenges की बात कर रहे थे कि पहले तो चैलेंज उनके पास है बोर्ड प्रिपरेशन, सेकंड चैलेंज है जेई की प्रिपरेशन। तो और इसके साथ एक फैक्टर एसोसिएटेड है कि उनके पास इतने कोचिंग फैसिलिटीज या मेंटरशिप अवेलेबल नहीं है, राइट? तो इज इट अ गुड डिसीजन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई एटलीस्ट व्हेन यू आर इन ग्रेड 11th? क्योंकि 11th ग्रेड में आपका बोर्ड नहीं होता है, एंड इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर okay, if your concepts are good, then I think you have sufficient time to prepare for the field। What do you think about this? तो यदि एनआरआई स्टूडेंट्स का 12th में बोर्ड्स का प्रेशर काफी ज्यादा होता तो उनके लिए बेटर तो ये होगा कि क्लास 11th में वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ताकि 12th में उनके ऊपर उतना लोड ना हो जाएगा और वो अपने बोर्ड्स पे भी अच्छे से फोकस कर सके। और 11th में ही यदि वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और तो उनको 12th काफी इजी लगेगा, क्योंकि हम 10th से जब 11th में आते हैं तो काफी बड़ा जंप होता है एकेडमिक्स के मामले में। तो यदि हम क्लास 11 उतने अच्छे से ना करें तो फिर क्लास 12th में हमें वो जंप पता चलता है, तो क्लास 12th आप शायद मैनेज ना कर पाओ उतने अच्छे से, तो क्लास 12th अच्छे से मैनेज ना कर पाओ, इसीलिए क्लास 11th में स्टार्ट करना ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। Right. I agree to that, Prabhat। So this is what we also convey to our students कि if you have to make the best use of okay, the camera is there, right? You can see me, right? Yeah। So what I was saying that अगर हम उतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं हो पाता है फॉरेनर एनआरआई स्टूडेंट्स के पास, तो आई थिंक इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली, ताकि एटलीस्ट आपका जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, जो आपके प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है, वो बिल्डअप हो पाए। क्योंकि 12th ग्रेड में आकर के ये सारी चीजें इकट्ठा करना आई थिंक वो थोड़ा सा किसी के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। सो इट्स अ वाइज डिसीजन दैट यू स्टार्ट एटलीस्ट इन ग्रेड 11 विदाउट अ डाउट, राइट? करेक्ट। सो प्रभात, आपकी बात थोड़ी सी करते हैं। जैसे आपने बताया कि आपका 11th आपका किस रीजन की वजह से आप ज्यादा सिंसियर नहीं थे, मतलब आपने ग्रेड 11 जेई की प्रिपरेशन आपने करी वहां पर, बट आप बोलो कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं था 11th में। तो मतलब क्लास 11 में स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन रहता है कि हाँ कुछ करना है, जेई क्रैक करना है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन जब चैप्टर्स चले, कुछ आगे के चैप्टर्स मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो वो मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता गया, मतलब क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो मोटिवेशन डाउन होता गया। फिर कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, तो फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स खेलने लगा मैं, और फिर उससे थोड़ा बहुत एडिक्शन हो गया, फिर मैं क्रिकेट खेलने भी चला जाता था। मतलब ये सब चीजें सब मिक्सड अप हो गई और इसके कारण थोड़ा सा क्लास 11 बिगड़ गया। लेकिन फिर वही जब मैं 12th में आया तो एक रियलिटी चेक मिला, जब मेरे 11th में बोर्ड्स में 56% मार्क्स आए थे, तो मतलब वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, हाँ झटका था, जिसने मुझे बताया कि हाँ अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम मार्क्स तो नहीं आए थे मेरे कभी। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तो प्रभात, इसमें आप मतलब अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अगर आपको एक गाइड करना हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग टू एनी स्टूडेंट हु इज इन ग्रेड 11, तो आपके अपने जो शॉर्टकमिंग्स थे ग्रेड 11 में, उनको आप अगर अगर आपको दूसरा चांस मिलता तो आप उसमें ऐसा क्या करते कि आपको लगता था कि यार अगर मैं ये करता तो मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता था? कौन सी तो मिस्टेक मतलब कि मैं अवॉइड करूं? हाँ, तो पहला मिस्टेक तो यही था कि यदि कोई चीज में से नहीं हो रहा, कोई चैप्टर में से नहीं हो रहा, तो उसको गिव अप कर देना, मतलब उस पर ट्राई मारते रहना है। मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन वही नहीं करना चाहिए था मुझे। यदि मैं फिर से और ट्राई करता तो इवेंचुअली मुझे वो चैप्टर समझ में आ जाते और क्वेश्चंस भी बनने लगे थे। और यदि मैं पूरा 11th अच्छे से पढ़ लेता तो भले मेरा 11th उतना ज्यादा स्ट्रांग ना होता, लेकिन फिर भी मैं बेसिक लेवल पे सारे चैप्टर्स कर चुका होता, जो कि मतलब काफी ज्यादा फायदा देता मुझे क्लास 12th में। 12th में बस मुझे क्वेश्चंस लगाने होते, यदि मेरा उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी हो पाया,
कॉन्सेप्ट्स क्योंकि मुझे आ जाते और बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती, जो कि मैं काफ़ी कम टाइम में हो जाता। तो जो भी ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब यदि उनसे कोई चैप्टर के क्वेश्चन नहीं भी बन रहे फिर भी उनको मतलब ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना, बस उनको जितना भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान देते जाना है और जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स जितना ही हो सके उतना अपने दिमाग में रखो और बाद में जब क्लास 12th आएगा तो आप उसको रिफाइन कर सकते हो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस के थ्रू। एटलीस्ट आपका बोल सकते हैं कि ग्रेड 11th आपका फाउंडेशन है। अगर आपका फाउंडेशन में प्रॉब्लम हुआ तो फिर आई थिंक बाद में जाकर के बहुत चीजों में प्रॉब्लम होने वाली है। तो एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग द फाउंडेशन, बिकॉज इस क्लास में आपको बोर्ड का प्रेशर नहीं है। आप अपने बोर्ड का सिंपल आप अपने स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आपकी बोर्ड की करिकुलम, बट बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है उसमें। यहाँ पे तो फंडामेंटल क्वेश्चन प्रभात, मतलब हम लोग तो इससे बहुत डील करते हैं, बट आई नीड टू नो योर ओपिनियन। यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक होती है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज की। दूसरा होता है उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, राइट, कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें अगर हमें 100 के स्केल पे अगर डिवाइड करना हो या आपको 100 के स्केल पे बाइफरकेट करना हो, तो आप कितना परसेंट बोलेंगे कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में इतना टाइम देना चाहिए, बाकी रिमेनिंग जो टाइम है आपको प्रैक्टिस करने में देना चाहिए? क्योंकि कई बार हमारे साथ जो इश्यूज हमने स्टूडेंट्स के एनालाइज किए, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा देखा गया कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ गई है, कोई टॉपिक स्पेसिफिकली उनका फेवरेट है, लेट्स से फिजिक्स में काइनेमैटिक्स उनका फेवरेट टॉपिक हो गया है अगर, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम काइनेमैटिक्स में थ्योरी में या स्पेंड किए जा रहे हैं, या लेट्स से क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो वो मोस्टली टाइम उसी के ऊपर बात करते हैं। बट जो वीक टॉपिक है उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें कितना पार्ट पोर्शन देना चाहिए आउट ऑफ 100, और जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इसका, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें उन्हें कितना टाइम देना चाहिए अगर हमारे पास 100 में से हमें डिवाइड करना? हाँ, तो मतलब आई थिंक कि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा मेरे ख्याल से। यदि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 30% ऑफ टाइम आप कॉन्सेप्ट पे दे सकते हैं और 70% टाइम प्रैक्टिस पे। और यदि मैं फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें आप 40-60 कर सकते हो, 40% कॉन्सेप्ट पे और 60% प्रैक्टिस पे। और यदि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप 60% कॉन्सेप्ट पे दे सकते हो और 40% प्रैक्टिस पे। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 40% कॉन्सेप्ट और 60% प्रैक्टिस। ओके, तो प्रभात, आई थिंक ये आपने एक अच्छा पॉइंट स्टूडेंट्स को बता दिया, एटलीस्ट आपकी बात शायद ज्यादा समझ पाए, बिकॉज यू बीन देयर। यहाँ पर आई जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक टू कन्वे अबाउट दैट एनआरआई कोटा, जो कि एनआरआई स्टूडेंट्स हैं। तो होता क्या है कि ऑब्वियसली सबका एस्पिरेशन तो आईआईटी जाने का ही है, सबको आईआईटी ही जाना है, बट इसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली आईआईटी को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर आदमी आईआईटी जा भी नहीं सकता है। जितनी भी सीट्स हैं उतने ही जा पाएंगे, तो द बेस्ट अमंग दो विल गेट इनटू आईआईटी। यहाँ पर एनआरआई कोटा का एक फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मे बी ग्रेड 10 में होंगे, कुछ पेरेंट्स होंगे जो वीडियो देखेंगे। आई नीड टू टेल ऑल ऑफ यू कि अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज यू have an NRI quota when you come back to India for engineering. You are looking for India for engineering. Obviously, you should try to get into IITs, but apart from getting into IITs, you have an NRI quota here, which is also commonly known as the CIWP and TASA. For this, we have given the link in the description. You can check the link in the description and get all the details, needed details from there. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि एनआरआई कोटा क्या करता है, तो आपने कभी सुना है वैसे प्रभात इस बारे में, सीआईडी, सीआईडब्ल्यूपी एंड आशा के बारे में? वर यू नोइंग हाँ, अबाउट दिस? काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने सुना था इसके बारे ओके, क्योंकि इस केस में, काउंसलिंग के केस में, जो एनआरआई स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यही काउंसलिंग को अटेंड करते हैं जो जासा ऑर्गेनाइज कराती है, एंड देन दे विल बी गिवन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो इस केस में होता ये है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इंडिया में ऑलमोस्ट 65 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम बोलते हैं सीएफटीआईज। ये सीएफटीआईज में आईआईटीज नहीं आती हैं। इनमें कॉलेजेस आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज, डीटीयू, एनएसआईटी, और इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस 60 अदर कॉलेजेस हैं। ये सारी डिटेल हमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप
एनआरआई कोटा में जितने लेना चाहते हैं या एनआरआई कोटा के थ्रू उसको सेकंड ऑप्शन अपना रखना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज एनआरआई कोटा? एनआरआई कोटा मतलब अगर हमें किसी भी स्टूडेंट को इंडिया में रहते हुए एनआईटी में एडमिशन चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको जेई मेन में एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। बट एनआरआई स्टूडेंट्स के साथ एक एडवांटेज है कि वो दासा सीएडब्ल्यूपी कोटा के थ्रू इन कॉलेजेस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसमें 15% सीट्स जो है वो रिजर्व है फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स। उस एनआरआई सीट को लेने के लिए एनआरआई स्टूडेंट्स को भी जेई मेन की रिक्वायरमेंट होती है। उस केस में जेई एडवांस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जेई मेन दे करके अगर आपका एक अच्छा स्कोर है, और इस चीज में एक और बेनिफिशियल बात है कि फॉर एग्जांपल प्रभात आप भी इसको रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जब कट ऑफ आई होगी तो आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ आई होगी सबकी, राइट, जितने भी लोगों को आईआईटी में जाना है। तो हमारी एक रेगुलर कट ऑफ आती है जिसके थ्रू हमें आईआईटी में एडमिशन मिलता है। बट जो एनआरआई स्टूडेंट होते हैं, इन एनआरआई स्टूडेंट्स की नासा सीएडब्ल्यूपी की कट ऑफ स्कोर अलग आती है। दैट मीन्स कि जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के क्राउड के साथ compete नहीं कर रहे, वो एनआरआई स्टूडेंट्स की फ्रेटर्निटी के साथ compete कर रहे हैं, तो बेस्ट अमंग्स द एनआरआई स्टूडेंट्स। तो उनमें जो कट ऑफ आती है उसके बेसिस पे दे वर गिवन एडमिशन इन दीज टॉप कॉलेजेस लाइक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएससीआर, कुछ एसपीए भी हैं आई थिंक इसमें, बट उनका पेपर 2 होता है आई थिंक, राइट। तो दिस इज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दासा एंड सीआईडब्ल्यूजी. You can check the link in the description. We have an ebook also coming up. You can also download that. So, coming back to the main discussion we were having, प्रभात. अब प्रभात मुझे एक चीज और थोड़ा सा समझाइए आपके पर्सपेक्टिव से। आपके लिए ग्रेड 12th में इम्पोर्टेंट क्या था? आपके लिए इम्पोर्टेंट जेई में एडमिशन, सॉरी आईआईटी में एडमिशन इम्पोर्टेंट था या सीबीएसई का स्कोर इम्पोर्टेंट था? ये थोड़ा वेयर क्वेश्चन, मेरे बट मैं इसका मेरे बाद में समझाऊंगा। मेरे लिए मेन इम्पोर्टेंट था आईआईटी में एडमिशन, क्योंकि जेई का मतलब सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का जो भी रिजल्ट आता है वो मैटर नहीं करता। तो क्लास 10 में मेरे जो रिजल्ट आए थे वो भी कुछ मुझे खास उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। और क्लास जो भी होता है क्लास में बोर्ड्स के रिजल्ट उससे कोई ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है, कोई आपसे बाद में जाके पूछेगा भी नहीं। आप यदि 10 साल बाद जाओगे तो कोई आपसे ये भले पूछे आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो, लेकिन कोई आपके 12th के मार्क्स या 10th के मार्क्स नहीं पूछेगा। मतलब मेरे लिए आईआईटी जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कंप्लीटली अग्री प्रभात। ये क्वेश्चन मैंने पूछा, अब मुझे लगता है कि सभी इसका आंसर यही देंगे कि आईआईटी इम्पोर्टेंट होता है, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन इम्पोर्टेंट होता है। ये एनआरआई स्टूडेंट्स हमें जितने भी देख रहे हैं दे कैन इजीली रिलेट टू इट, क्योंकि बहुत बार जब हमारी पेरेंट्स से बात होती है, when we compel them कि your ward has to study, you have to put in time for the JEE preparation, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत सारे जो एनआरएस स्टूडेंट्स हैं उनके अनसक्सेसफुल होने का आईआईटी जेई के अंदर या जेई एग्जामिनेशन में होने का, वो ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी एनआरएस स्टूडेंट्स हैं उधर एक कल्चर है कि यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट इन द स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो जो रेशियो हमें 90% अपने जेई प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, वो हमने देखा है बाहर, बिकॉज वी हैव बीन टू ऑलमोस्ट द एंटायर मिडिल ईस्ट, बी इट यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, Saudi Arabia, Singapore, Malaysia, and Indonesia. We've been to everywhere. We have spoken to 1,000, 5,000 students all together. यहाँ एक कॉमन फैक्टर ये है कि स्टूडेंट्स को, इंडिया में क्या होता है कि हम 10% ही बोर्ड के लिए चिंता करते हैं और 90% लगते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। अब्रॉड में ये बिल्कुल उल्टा सीन है। वहां पर 90% दे आर फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन कि यार हमारा बोर्ड में रिजल्ट में 95 अगर है तो किसी तरीके से ये 99 हो जाए, तो दे आर फाइटिंग फॉर दैट 4%। और कहीं ना कहीं क्योंकि किसी को भी अभी ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है उस टाइम पर somehow, तो आप उस 4% के लिए फाइट कर रहे हैं। व्हाट वी ट्राई टू कन्वे है कि अगर आपका ओवरऑल स्कोर 95 है, फॉर एग्जांपल 12th में बोर्ड में आपको लगता है कि 95 आएंगे, तो हम आपको ये बोलते हैं कि भाई आप 95 क्यों लेके आ रहे हैं, आप उसको कट डाउन करिए, अगर आपका 85 भी आएगा तो भी चलेगा। बट what you cannot compromise on is on your time that you spend for your JEE preparation.
तो जेई प्रिपरेशन का टाइम 90% होना चाहिए और बोर्ड का 10% होना चाहिए। डू यू थिंक यू अग्री विद दिस? या आई कम्प्लीटली एग्री, मैंने भी वैसा ही किया था। मैंने पूरे साल जेई के लिए ही पढ़ा था। जब मेरा बोर्ड्स आया था उसके मैंने 2-3 हफ्ते पहले बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। हमारे लिए ना बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हमें एक इसमें समझ आता है कि जब आप जैसे आपने बोला कि भाई मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, ज्यादा मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और कम मैंने उसकी प्रिपरेशन करी। यहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन मेरा सिंपल ये है कि जब मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करता हूँ, राइट, तो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने के साथ साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करी है तो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पर यस। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप अपनी सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ थोड़ी थोड़ी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सिर्फ बोर्ड की ही प्रिपरेशन हो रही है, आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन नहीं हो रही है। जबकि फर्स्ट सिचुएशन में इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपकी बोर्ड प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? हाँ, क्योंकि हमें जेईई में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है तो मतलब वो बोर्ड लेवल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे होती है। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है तो आपका बोर्ड्स लेवल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो जाएगा। तो आपको जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए केक वॉक होंगे। बस बात रही इंग्लिश की और एक जो दूसरा आपका 5th सब्जेक्ट होगा, बस उसके लिए आपको बस पढ़ना पड़ेगा। बाकी इन तीनों की तो आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी जेईई के प्रिपरेशन के साथ ही। राइट। प्रभात, इसमें एक फैक्टर और बताइए, जैसे आपने शुरू में कहा था कंसिस्टेंसी, और आपने एक वर्ड यूज किया था जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल हम सब बनाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुत लोगों से वो मैनेज नहीं होता। हम हर वीक एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर हर मंथ बनाते हैं और पता चलता है कि 6 महीने ऑलरेडी चले गए। राइट। तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे मीट किया आपने? या आपने भी मल्टीपल टाइम टेबल बनाए और फिर उनको रिवाइज किया आपने भी? हाँ, मतलब मेरा कोई ऐसा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था कि 8 से 9 मुझे पढ़ना है, 9 से 10 ये करना है। मेरा बस ऐसा मोटा-मोटी टाइम टेबल था कि सुबह में उठ के मुझे इतने देर 11th का पार्ट करना है, फिर बाद में मुझे खाना खाने के बाद इतने देर क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर रात में मुझे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। मेरा इस टाइम का टाइम टेबल था और मेरा टाइम टेबल फ़ॉलो करने में मुझे जो चीज़ हेल्प करती थी वो थी एक कि मैं पिछले ही दिन अपना टू डू लिस्ट बना देता था कि कल उठ के मुझे कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और स्पेसिफिकली मैं लिख लेता था इस टॉपिक में मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, इस टॉपिक का मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसके नोट्स रिवाइज़ करने हैं, इसका टेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें मैं लिख लेता था। तो ये इससे मेरे माइंड में क्लैरिटी होती थी कि राइट। हाँ, उठ के मुझे यही चीज़ें करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी और जब मैं वो टू डू लिस्ट पे टिक लगाता था, उन चीज़ों को क्रॉस करता था, तो एक सैटिस्फैक्शन मिलता था कि हाँ, मैंने कुछ मेजर चंक ऑफ द डे कंप्लीट कर लिया है। वो सेंस ऑफ अचीवमेंट की, या ठीक है जो हमने हाँ। एटलीस्ट टाइम किया था, एटलीस्ट दैट इज देयर, तो हम हुँ, कुछ लाइन में आगे बढ़े हैं अभी। यहाँ प्रभात एक और मतलब मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलमोस्ट रोज एटलीस्ट 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास रोज आते हैं फ्रॉम एनआरआई स्टूडेंट्स, फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक डमी स्कूल का ऑप्शन ले लेते हैं हियर इन इंडिया। आप जैसे रेगुलर आप रेगुलर स्कूल में ऑलरेडी सारा प्रिपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एक मेजर चैलेंज ये है कि वो बोर्ड भी हैं, बोर्ड भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, उसके लिए वो लोग अपनी ट्यूशंस भी जाते हैं। अब आपकी आईआईटी जेई की भी ट्यूशन है, तो आपने ये टाइम को कैसे मैनेज किया? अगर आप बोल रहे थे आपकी 8 घंटे 9 घंटे किसी भी स्टूडेंट को निकालना है, और अगर वो सुबह रोज प्रिपेयर होता है 7 o'clock 8 o'clock फॉर हिज और हर स्कूल, तो हाँ, ये मैं वैसे डमी स्कूल में था, मैं रेगुलर स्कूल में नहीं था। ओके, अच्छा आप भी डमी स्कूल में थे। हाँ, हाँ, ओके ओके, क्योंकि इससे लास्ट इंटरव्यू हमने किया था कैंडिडेट फ्रॉम आईआईटी रुड़की, वो भी बेसिकली ही वाज फ्रॉम द डमी स्कूल। तो ये चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल, ऑब्वियसली बहुत लोग रेगुलर स्कूल में भी जाते हैं, उसके साथ वो जेई की प्रिपरेशन करते हैं जो कि एक ऑब्वियस तरीका है, बट उस केस में ये टाइम निकालना, हाउ डिफिकल्ट यू थिंक इट इज और हाउ इजी इट इज, और या फिर ये सिर्फ एक माइंडसेट है कि अगर आप सोच लेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक इट आउट, अदरवाइज हमारे पास एक्सक्यूजेस तो हमेशा हर चीज के लिए होते हैं। हुँ, मतलब ऐसा नहीं कि यदि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो नहीं कर सकते हो, रेगुलर स्कूल जाके भी आप कर सकते हो, स्कूल में भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ पे टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप
अपने बैक बेंच पे बैठ के कुछ भी आप पढ़ सकते हो, आपको जो जेईई का पढ़ना है। फिर फ्री पीरियड्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी आप कुछ कर सकते हो। और आपको स्कूल में 75% अटेंडेंस चाहिए, तो आप बस उतना ही कंप्लीट करो जितना 75% के लिए चाहिए, बाकी दिन आप स्किप कर सकते हो। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है आईआईटी बॉम्बे में, जो कि रेगुलर स्कूल किए उन्होंने, 11-12 दोनों रेगुलर स्कूल किया, फिर भी उनकी काफी अच्छी रैंक है, अंडर 1000 अंडर 500 रैंक वाले भी है। मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो नहीं कर सकते हो, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको बस। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि ऐसा नहीं होता है कि हर स्टूडेंट स्कूल में ही होता है। ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको चीजें समझनी है, तो इट्स वन ऑफ द ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। अदरवाइज आप उसके साथ भी कर सकते हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ बेसिकली, इन माय ओपिनियन इट्स अ थॉट प्रोसेस। अगर आपने ये प्लान कर ही लिया है कि मुझे वो करना है, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू टेक आउट सफिशिएंट टाइम। So I think, okay, we have largely covered up quite a few questions. आपको प्रभात ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर हो गया था हाँ, क्लिक? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। यू वांटेड आईआईटी मुंबई, और या फिर आपको आपका कोई प्रेफरेंस कुछ और भी था? नहीं, मुझे आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए था, तो मुझे दूसरे आईआईटीज में, कुछ लोअर आईआईटीज में अच्छी ब्रांच भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आईआईटी बॉम्बे को प्रेफर किया। ओके, ओके। तो ओरिजिनली यू आर फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, और वेयर डू यू बिलोंग? आई बिलोंग टू बिहार, दरभंगा। ओके। अमंग ऑल दी सब्जेक्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट, अगर मैं पूछूं कि जब आपने जेई का पेपर दिया, तो आप पहले ये बताइए, थोड़ा सा हमें बताइए कि आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको कि यार ये बेस्ट मेरा बेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स था? और आपने जब जेई का पेपर दिया, तो हम्म, आपको क्या लगा कि आपको आपने बेस्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा गया इस बार जेई में, जिसमें आपने बेस्ट परफॉर्म आप करते हैं? फिजिक्स? मेरा फिजिक्स ही बेस्ट गया था। आपके टाइम पे कट ऑफ कितना था प्रभात? मेंस का या एडवांस का? मीन्स मेंस का कट ऑफ 91% के आसपास। 91%। ओके, हम्म, ग्रेट। सो प्रभात, लार्जली मुझे बस इसी चीजों के बारे में थोड़ा सा आपसे insights चाहिए थी, and I think that will be much more helpful for our audience here in India as far as another students is concerned. Although हम इस छोटी conversation में we cannot talk much about each and everything. So what I'll do is you all can obviously leave your comment down in the video, and we'll forward it to Prabhat also if in case you wanted to ask him, and we'll come back to you with an answer. So for this session, thanks for joining us, Prabhat. Thanks for your time. thank you. Thank you. Thanks for I will listening. try to reply all the queries which your audience asks. Sure, sure, sure. Thank you. Thanks a lot.